Hello, all the future officers. I am Ajay Dhaneshwar Dhok. I have secured 209 rank in UPSC CAPF 2020. I have been allocated ITBP as my fourth allocation. My marks in the paper, my marks in the CAPF exams are like in paper 1 I scored 154 marks, in paper 2 I have scored 81 marks, in interview I have scored 90 marks. So total score of me in CAPF is about 325 out of 600 marks. So my stronghold area is paper 1. Whenever I gone through a CAPF exam, I have always scored more than 150 marks in the CAPF. So I'm here to tell you a success or the way of study that I have undergone to get the CAPF, to get selected in UPSC CAPF. So if we look at the syllabus or the pattern of paper 1 exams, there are almost 125 questions. Each question have weightage of 2 marks. So total marks of paper 1 are 250 marks. We have 2 hours to complete our paper 1. So to complete the paper 1, we have 2 important things like accuracy and speed. So accuracy speed हमें कैसे आएगी? So we have to revise our whole syllabus again and again. Then we have to give mock drills. We have to analyze the mock drills, whatever the mistakes that we have undergone or we have made in that mocks, and to correct or rectify that mistakes so that we can score maximum in maximum scores in paper 1. So if अगर हमने सारे टॉपर्स के अब तक के सारे टॉपर्स के मार्क्स अगर देख लिए तो हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए. लाइक कुछ लोगों ने तो 180 प्लस, 190 प्लस, कुछ कैंडिडेट्स ने 200 प्लस भी स्कोर किए. सो हमारा मेन फोकस रहेगा पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना, ताकि हमारी ओवरऑल रैंक और ओवरऑल स्कोर बढ़ जाए. तो हम पेपर 1 के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो हमें CAPF AC नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं, और हमें सबको मालूम होता है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है. सो फर्स्ट लाइक देयर आर 6 to 7 टॉपिक्स. उसमें से पहला देखेंगे हम तो हिस्ट्री है. हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न. इसमें अगर हम वेटेज देखेंगे हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चंस like 15 to 20 questions are asked in CAPF exam every year if we analyze the previous year questions of CAPF. So for all the syllabus or whatever the subjects we have, the basic understanding or basic books that we have to read is NCERT. हमारे लिए NCERT सब कुछ है. like सब कुछ है हमारे लिए NCERT, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इफ़ वी कंसिडर लुक एट द आउट ऑफ द 125 क्वेश्चंस, like 70 to 80 questions comes from direct NCERTs. So we have to revise, read and make notes, proper notes of NCERTs, so that it will gain in our marks in paper 1 marks. So if अगर हम हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें हम इस हिस्ट्री का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. To complete ancient history, we have to majorly depend on the 6th NCERT, which is our past first. Then for medieval history, we have 7th standard NCERT called our past second. For modern NCERT, modern history, we have 8th standard NCERT, which consists of 2 parts: our past part first, our past 3 part 1 and part 2. इसके अलावा जो NCERTs होते हैं लाइक 9th, 10th, 11th, उसकी हमें CAPF हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हमें कोई ज़रूरत नहीं उसको रीड करने के लिए. अगेन 12th की NCERT जो इंडियन थीम्स है वो हमारे NCERT के सबसे मेन बुक है. अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हिस्ट्री में आते हैं वो 12th की हिस्ट्री थीम्स से आ जाते हैं. सो वी हैव टू मेजरली रीड 12th थीम्स प्रॉपरली, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ every part so that we can revise it properly. every part
to make notes, even we have to consider the diagrams or the images that had been given in that books. क्योंकि हमने काफ़ी देखा है like last 2-3 years the small captions that are given under that images, UPSC has asked questions from that images. So every sentence in the 12 themes is very very important for us to prepare. अगर ये सारी किताबें अगर पढ़कर हमें एक्स्ट्रा टाइम हो, अगर हमें चाह हो, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं. ये बहुत यूज़फुल बुक्स है अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से कवर करनी हो. इसमें सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे, सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें चाहिए वो इस बुक से कवर हो जाता है. इसके अलावा अगर आप ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक होती है, उससे भी हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स कवर कर सकते, वो भी बेनिफिशियल है CAPF के एग्ज़ाम के लिए. अगेन सेकंड पार्ट इज़ ज्योग्राफी. Geography is very easy and subjective type questions. If you understand geography properly in first way, you don't need to revise or that much efforts are needed. Like we have to give our efforts to make perfection in history. So geography काफ़ी easy है अगर एक बार में समझ लिया. तो geography के लिए भी same, NCERT books are really important. The basic geography can be covered from 6th, 7th, 8th, 9th NCERT. हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 बुक्स है NCERT की, 11th एंड 12th. इन 11th में सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी से जो 11th क्लास की है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो पूरी बुक्स रीड करना इम्पोर्टेंट है, उसकी रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा जीसी लियोंग, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जीसी लियोंग से ज़्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाता है. जीसी लियोंग में ज़्यादातर एग्जांपल्स दिए गए हैं जो हमें मैच द फॉलोइंग जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि NCERTs में ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है फिजिकल फीचर्स के लिए. सो जीसी लियोंग से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स ओरिएंटेड अप्रोच रख सकते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मैपिंग. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैपिंग जो ज्योग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है उसे भूल जाते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं. लेकिन मैपिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है. 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल मैपिंग से आ जाते हैं. और वैसे भी अगर देखा जाए तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टिंग रिमोट एरियाज़ में होते हैं. तो एज असिस्टेंट कमांडेंट यू हैव टू read the maps properly and thoroughly so that it will be beneficial to you and your company as well, so that you cannot go in anywhere. So ये हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. लाइक पॉलिटी, one of the most important and most scoring subject in overall CAPF is पॉलिटी. इससे लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. जो बंदा इसमें पूरे मार्क्स लेकर आता है वो उसके ओवरऑल स्कोर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है. बस इसमें क्या ज़रूरत है, लॉट्स ऑफ रिविजन, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन बदल जाता है. और अगर हम यूनियन मशीनरी, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे तो लगभग सेम ही है. यूनियन और स्टेट, उनके आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है और इनको अच्छे से तैयार करना चाहिए यूनियन और स्टेट को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसेंबल करते हैं. क्योंकि हमारे फेडरल सिस्टम है तो जो पावर्स यूनियन को है यूनियन के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट को है स्टेट गवर्नमेंट के लिए. सो ये 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोरोली करना चाहिए. और दूसरी बात रही सोर्सेज की, तो अगर कोई भी बंदा जो CAPF और UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो उसके लिए बाइबल और गीता बोल सकते हो उस बुक को, वो है यम लक्ष्मीकांत की. ज़्यादातर क्वेश्चंस यम लक्ष्मीकांत से ही आते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये हमारे हिसाब से पॉलिटी के लिए. Another important books in perspective of NCERT is Indian Constitution at Work and Political Theory. In Political Theory we have lots of conceptual clarities. Actually this book will be more beneficial in paper 2, so that you can get through a more conceptual clarity
विच विल बेनिफिशियल इन योर ऐसे राइटिंग स्पेशली। सो ये बुक भी पढ़ के रखिए, नोट्स तैयार करके रखिए, और इसका ज़्यादातर उपयोग होगा पेपर 2 के लिए। लेकिन यम लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दीज 2 बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1। सो रीड इट थरोली एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अगर देखा जाए कि कुछ लोग क्या करते हैं, यम लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाना चाहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो बुक्स इतनी हेवी बल्कि है कि इसके नोट्स बनाना लगभग नामुमकिन है, तो उसके नोट्स ना बनाए यही बेनिफिशियल होगा, ऐसा मुझे तो लगता है। ठीक है, अगर उसके बाद के हमारा टॉपिक होगा साइंस। साइंस के हर साल लगभग 22 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस को है अगर हमने CAPF पेपर 1 का एग्ज़ाम अगर एनालिसिस किया, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। क्यों स्कोरिंग कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जाते हैं वो 1 लाइनर होते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चंस आसान भी होते हैं और वो टाइम भी बचाती है। अगर आपको अच्छे से सारे वर्ड्स, सारे कीवर्ड्स साइंस में मालूम होंगे तो आपका इसका उपयोग आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर भी जल्दी से सॉल्व होगा। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अगेन दोबारा सा देखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। कब? जब आप साइंस के सारे क्वेश्चंस झट से हल कर देंगे। ठीक है, तो साइंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड फॉर साइंस वी हैव टू कवर आवर बेसिक्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, 7th and 8th NCERT। दीज आर इम्पोर्टेंट टू कवर बेसिक। इससे बेसिक कवर हो जाता है। इसकी एक रीडिंग कर दी, कंसेप्ट समझ में आए तो बस, इसके ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी है? 9th और 10th। अगर हम देखें, पेपर का एनालिसिस करें, अगर 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं तो उसमें से लगभग 22 to 23 क्वेश्चंस सिर्फ इन 2 बुक से आते हैं। इन 2 बुक से लाइन टू लाइन नहीं पूछेंगे, लेकिन इसमें इन 2 बुक्स में जो हमें एक्टिविटी करने के लिए बोला गया होता है, जो डायग्राम्स दिए होते हैं, जो इक्वेशंस दिए गए होते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और वो अगर हम ठीक से रिवाइज करें, प्रॉपर नोट्स है हमारे पास, तो इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं और आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 3 to 4 क्वेश्चंस अगर हम देखें तो 11th और 12th के NCERT से भी पूछे जाते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। वो पूरी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपके लिए इनका जो सेग्रीगेटेड मटेरियल है, जो कुछ पेजेस का होगा, वो अवेलेबल कर देंगे। उसमें से आप पढ़ाई कर दीजिए, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और शायद 25 के 25 मार्क्स आपके स्कोर हो जाए, इम्प्रूवमेंट भी दिखे आपके ओवरऑल रैंक में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर हम पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लिए तो इकोनॉमी का वेटेज है ना, वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। पहले 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 साल से पिछले इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज फ्रॉम 4, 5 to 9 to 10। So we should not neglect the importance of the economy। तो इकोनॉमी की प्रिपरेशन कैसे करें? ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको इकोनॉमी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमी में ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो डेटा वगैरह इसका कोई मतलब नहीं होता ज़्यादातर CAPF में। सो इकोनॉमी के कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए 11th की NCERT इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस 2 बुक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी बुक है, वो भी अच्छी है, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उससे आपके ओवरऑल इकोनॉमी के कंसेप्ट्स में और क्लैरिटी आ जाएंगी। इसके साथ में हम आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइक कंसेप्चुअल टर्म्स की PDFs भी अवेलेबल कर देंगे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैथ्स एंड रीजनिंग। सो दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ज़्यादातर बच्चों का टाइम यही जाता है। हमें 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में। इसमें उन 125 क्वेश्चंस में आजकल 15 to 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। अगर हम इनका प्रॉपरली
अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा पेपर कवर नहीं हो जाता, क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसका हमारे स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमें 2 सोर्सेस है, लाइक RS Agarwal and another one is PYQ. PYQ is very important in the sense that we can get the idea of how UPSC is asking the questions actually. So with PYQ we can segregate few topics on which UPSC is asking questions repeatedly, so we have to practice it more and more. So we can watch some YouTube videos regarding some concepts of maths or reasoning, so that we can better understand. If our concept is strong, then हमें कोई भी कैसा भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो हम मैथ्स और रीजनिंग से सही कर देंगे। सो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रख दीजिए। और इसके लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, टाइम कम जाएगा और आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। सो मैथ्स रीजनिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव दैट इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स। जो भी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको सबको पता है, सारा पेपर सारा खेल करंट अफेयर्स का है। जिसने करंट अफेयर्स कर दिया उनको तो बल्ले बल्ले हो गई शायद, ऐसा है, इतना इम्पोर्टेंट है इस करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स का। ओके, अगर हम स्टैटिक सिलेबस करंट अफेयर्स से कंपेयर करके देखें तो स्टैटिक के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के रिलेटेड होते हैं, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के ज़्यादातर मैपिंग जो सवाल पूछे जाते हैं उनके कोई ना कोई लिंक करंट अफेयर में मिल सकता है। सो जो सवाल स्टैटिक सिलेबस से कवर नहीं होते, लाइक डिफेंस, IR, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, बुक्स एंड अवार्ड्स, स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव टू रीड ऑल दिस सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक मैंने मेजरली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था मुझे इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा लगा, लैंग्वेज भी आसान होती रहती है और उनको जो एक्सप्लेन पेज रहता है उस पर सारे जो करंट अभी जो बर्निंग इवेंट्स होते हैं, जैसे हॉट इवेंट्स कहते हैं, वो एक्सप्लेन करके देते हैं और ज़्यादातर सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन अब आजकल द हिंदू का स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा पेजेस कुछ ऐड किए हैं एडिटोरियल्स में, उससे काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में हमें बेनिफिट मिल रहा है द हिंदू से। और करंट अफेयर्स के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 6 मंथ्स होते हैं। कौन से? फ्रॉम जनवरी टू जून। जिस साल में पेपर हो रहा है, लाइक अगस्त में पेपर होता है, तो उसी साल का जनवरी टू जून, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज मंथ्स शुड बी प्रॉपरली रिवाइज्ड एंड मस्ट बी रीड। ओके, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस पिछले महीने की भी आ रही है, तो उनका तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे ज़्यादा फोकस जनवरी टू जून इन 2 मंथ पर रहना चाहिए। अगर कुछ मैगजीन्स होते हैं जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, विच आर पब्लिश बाय आवर गवर्नमेंट, सो इन मैगजीन्स को पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक इन मैगजीन्स में जो डेटा होता है वो हमें पेपर 2 में अपने आंसर्स फॉर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक कुछ स्कीम्स होते हैं, डिफेंस के रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल होता है, वुमेंस के रिलेटेड कभी कभी तो कुछ योजनाएं, कुरुक्षेत्र टोटली वुमेन के रिलेटेड आ जाते हैं, वुमेन के रिलेटेड सब्जेक्ट पे। सो इट विल बेनिफिट इन आवर फॉर्मिंग आवर आंसर्स इन पेपर 2। अनदर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सोर्सेज PIB। सो PIB वेबसाइट डेली चेक करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि PIB में जो ज़्यादातर न्यूज़ होती है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज़ होती है, हर मिनिस्ट्री की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, तो हमें लगभग करंट अफेयर्स के हर डायनेमिक कवर हो जाते हैं। अगर इनको देखा जाए, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, लाइक डिफेंस, IR, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, बुक्स, अवार्ड्स, स्कीम्स एंड साइंस एंड टेक, हमें इनके कुछ नोट्स हर महीने बनाकर रखने चाहिए, ताकि क्या हो कि हमारे रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो और हमारा स्कोर करंट अफेयर्स और पेपर 1 में मैक्सिमम। तो दोस्तों, यही थे आज के लिए।
पेपर 1 के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मुझे लगता है पेपर 1 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपका पेपर आपने कितना भी पढ़ लिया हो, अगर आपसे सही रिवीजन नहीं होगा, सही से आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, फोकस नहीं रहोगे, तो आपका पेपर 1 कंप्लीट नहीं होगा। और अलग से 120 मिनट्स में अलग से टाइम रखना पड़ता है, लाइक 5 to 10 मिनट्स फॉर मेकिंग राउंड्स इन द आंसर शीट्स, जस्ट बिकॉज उसमें भी वक्त लगता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, एक्यूरेसी बढ़े, और आई होप सो दैट आप you will score maximum in paper 1 and secure a good ranking in CAPF. Thank you so much.